परमीत सिंह। जो दुखदाई घटना हुई है की कहना चाਹੁंਦੇ ਸੀ? ये बहुत दुखदाई घटना हुई है। साडा रिश्तेदार भी सी, पर इकलौता पुत्र होने के नाते ये ਜਦੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧੱਕਾ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਰੋਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ? ਫਰੋਤੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਫਰੋਤੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਖਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਥਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਵੀ ਆ ਫਰੋਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਕੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਹੋਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੋਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਲਗਭਗ 11-12 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ? 25 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਮ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜਾ ਨੱਠੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ 9-8 ਵਿੱਚ ਫੜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂਗਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਹਰਮਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਬੰਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ। ਅੱਜ ਹਰਮਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਜਾਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ? ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, किसी होर माँ का पुत ना चला जाए। 25 नवंबर इसी साल थाना कोटबाई
को एक सूचना दी जाती है एक नवयुवक की, एक 20 साल ਦੇ लड़के ਦੇ किडनैपिंग की उत्ते कराने वालों। उनका कहना था कि 12 बजे हमारा लड़का घरों तो जाता है, उसके बाद लगभग 4 बजे उनको एक फ़ोन आता है कि थोड़ा लड़का किडनैप हो गया है तो सानू 30 लाख रुपए दो अगर तुहानू चाहिए वापस। इस घटना के बाद ये जो इंसीडेंट रिपोर्ट होता है तो आप वक् टीम बनाते हैं। SSP श्री मुक्तसर साहब आप खुद टीम नो लीड करके कई थां पे हम लोग रेड्स करते हैं। जिहड़े इसके एक्यूज़ थे ये बड़े शातिर और बड़ी चलाकी नाल पुलिस नूं ते परिवार नूं गुमराह करते हैं। पहले परिवार नूं ये धमकाते हैं कि तुसी पुलिस नूं किसी भी सूरत च इन्फॉर्म ना करो, ना थोड़ा लड़के का नुकसान हो जाना। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हम लोग को ये लगने लग गया था कि ये जेडे बंदे हैं या तो उन्होंने ये नाल गलत काम कर देता है, जेड़ा लड़का किडनैप हुआ है ये इनके पास है नहीं, और ये बेसिकली जेडे परिवार वालों 30 लाख की वो भी पैसा मानना चाहते क्योंकि लड़का के नुकसान ऑलरेडी कर चुके थे, ऐसा लगने लग गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो परिवार नूं बेसिकली इन्होंने बीच में परिवार नूं कन्विंस कर लिया कि तुसी 30 लाख फलां थां पे रख जाओ। पहले इन्होंने दौड़ाते हैं कि तुसी फलां थां पे आ जाओ, उसके बाद फिर कहते हैं तुसी हुण उत्थे आ जाओ, उसके बाद कहते तुसी एक ट्रेन फड़ लो जी। ट्रेन में जब बैठते हैं तो उत्थे आगे जाके ट्रेन एक थां पे धीरे होती है जहाँ कहते हैं तो तुसी बैग इतने छड़ जाओ। तो चूँकि हमारी टीम सादी वर्दी में ऑलरेडी ऑन द जॉब थी और बड़े केयरफुली जो है सावधानी नाल हम लोग पीछा कर रहे थे। तो जदों उत्थे बैग जड़े लेने वाले बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, हमारी टीम उसका पीछा करती है। वो बंदे बेसिकली राजस्थान के एक जिला अपना इत्थे गंगानगर है, उत्थे एक थाना है, उत्थे पिंड पहुँचते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है SSP साहब ऑलरेडी चूँकि इससे पीछे लगे हुए थे। मैंने अपने काउंटर पार्ट जो IG बीकानेर है राजस्थान में, उनके साथ तुरंत मैंने संपर्क साधा। तो वहाँ की लोकल टीम भी उसने उस गांव की जो है घेराबंदी की। बेसिकली मोटरसाइकिल छोड़ के वो भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल हम लोग के कब्जे में आ जाती है। उससे भी हमें फर्दर लीड्स आगे मिलती हैं। काफ़ी पेंस्टिंग एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद हम लोग इन एक्यूज़ की आइडेंटिटी हम लोग को डिस्क्लोज होना शुरू होती है। तो पता है चलता है इसमें जो मेन एक्यूज़ड है नवजोत, वो दुबई इसी आफ्टर द किडनैपिंग जा चुका है और वहाँ से बेसिकली वॉइस कॉल के जरिए इनसे बातचीत कर रहा है, इनसे पैसे की फरोती मांग रहा है। एक इंटरेस्टिंग गल जो और आई इसमें कि इसमें चिट्ठी लिख के कोई बंदा जो है इनके आसपास बताए ठिकानों पे छोड़ जाता है, जिसमें कि मैसेज लिखा होता है हुण आगे किमें रैंसम की कॉल लेनी है। इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ये चिट्ठी लिखने वाला और कोई नहीं, एक माइनर बच्चा है जो एक एक्यूज़ड का है। मतलब हद ये होगी कि एक्यूज़ अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है इस तरह के रैंसम कॉल्स या चिट्ठी लिखवाने में। तो बेसिकली उसको भी हमने नॉमिनेट किया है, वो भी अरेस्ट किया गया है। इसमें अब तक 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। कई सारी हमारी टीम्स, हमारी मॉडर्न टेक्निकल एफर्ट्स इसमें लगे हैं। तो इसमें अरेस्ट होने वाले एक मलकीत सिंह सन ऑफ जोगिंदर सिंह रेजिडेंट ऑफ अली के झुग्गियाँ हैं। एक रमनदीप कौर है जो मेन एक्यूज नवजोत सिंह है, उसकी वाइफ है। थर्ड है मनदीप सिंह सन ऑफ रेशम सिंह। जगमीत सिंह अलियास मुशी सन ऑफ मोहिंदर सिंह ए मलकाने पिंड का है। पांचवा है गुरसेवक सिंह ए दा पिओ जेड़े सरपंच है शाम खेड़ा पिंड का। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, इसदे खेत दे विच इन्होंने ਜਿਹੜੇ अक्यूज़ थे इन्होंने इसकी बॉडी ਜਿਹੜੇ विक्टिम है उसकी बॉडी उन्होंने वहाँ पे दफनाई थी। बाजार से नमक ला के नमक के नाल बताई था कि वो उसके बीच में गल जाएगी, और इनकी प्लानिंग कुछ दिन पहले से थी।
जब हमने पूछताछ की तो पता चला जरा गुरसेवक सिंह है जिसका खेत है, उसने 4-5 दिन पहले ही गड्ढा खोद के रखा था। उससे पूछा भाई गड्ढा तुमने क्यों खोदा था भाई? तो कहता है सर जरा मेन एक्यूज था उसने तो मुझे ये कहा था कि कुछ हथियार आपस स्मगल कर रहे हैं, तुसी इत्थे छुपाना है, तुसी गड्ढा खोद के रखो तो तुहानू इन्ना ठीक ठाक फ़ायदा हो जाना। उस लालच में, जैसा कि अभी तक इसने पूछताछ में बताया है, इसको हम और वेरीफाई कर रहे हैं कि इस वाकई में था कि क्या था। बट जदों ये बंदा ले आते हैं इसके गुरसेवक के घर पे शामखेड़ा पिंड, तो विद इन फ्यू आवर्स ही वो है इसका ये लोग इसको मार डालते हैं, गला घोट के मोस्ट प्रॉब्ली। हालांकि पोस्टमार्टम में भी क्लियरिटी हमें और आ जाएगी, बट हम लोग सस्पेक्ट यही कर रहे हैं। तो इसमें 3-4 बंदे जड़े हैं, इन्होंने इसके ऊपर चढ़ के गला घोट के इसकी हत्या कर दी और फिर इन सब ने मिल के उसकी बॉडी वहाँ दफनाई। उसके बाद कहा, उसने प्लान बनाया कि हुन आप ये फिरौती भी लेंगे। इसमें जड़ा मृतक है हरमन सिंह, वो भी मेन एक्यूज नवजोत जान वाला है। तो संभवतः नवजोत खतरा था कि अगर ये जिंदा रह गया तो ये मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा। अभी और भी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना बाकी हैं, पूछताछ चल रही है, इसमें और खुलासे भी होंगे। एक अहम चीज़ और है कि इसमें इनके इंट्रोगेशन में पता चला कि इन्होंने एक वारदात इसी तरह की पहले भी की है। एक निर्मल सिंह नाम का व्यक्ति है, सन ऑफ मंजीत सिंह, पिंड गुरी सांगरदा, वो भी लापता बताया गया था। ये वो भी थाना कोट भाई का है, अप्रैल के महीने दे विच। और उसमें भी बेसिकली इंटरेस्टिंग गल है कि निर्मल सिंह का कज़न लगता है जड़े मेन एक्यूज नवजोत है, और एन एक्यूज इन सब ने बताया कि नवजोत ने उसमें भी उसको ही हत्या कर दी और उससे भी उसके परिवार से पैसे मांग रहे थे, और उसकी हत्या भी जिस दिन उसको ले गए उसे फ्यू आवर्स के अंदर उन्हें कर दी थी। अभी उसमें हम लोग तफ्तीश जारी है, इसमें उम्मीद है कि उसकी बॉडी भी हम लोग रिकवर कर लेंगे, कहाँ पे उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ किया है, वो अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, जारी है। नवजोत जिस शातिर तरीके का है, कुछ और भी हमें शक है कि कहीं और आसपास के ज़िलों में भी इसने ऐसी वारदातें ना अंजाम दी हो, उसका भी हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं। आसपास ज़िलों से बात करें, कहीं वहाँ पे कोई इस तरह से बंदा, कोई व्यक्ति अगर कोई गायब है, भटिंडा या और ज़िलों में भी कुछ लीड्स मिल रही हैं। तो आफ्टर द इंट्रोगेशन और बाकी जड़े एक्यूज्ड हैं इसमें जो अभी भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद हम उसमें और खुलासा करेंगे। सर कितने लोग हैं इस गिरोह में? जो 5 पकड़े हैं, कई और भी शामिल हैं लोग इसमें? इन 5 के अलावा जी लगभग 6-7 लोग और हैं। उन 6-7 लोगों में एक जुवेनाइल भी है, एक माइनर भी है, जिसका इसके पिता ने पियो ने इस्तेमाल किया चिट्ठी लिखने में। सर ਜਿਹੜੇ चिट्ठी लिखने वाला है जो मेल फीमेल है, आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी, डेट विल अफेक्ट इन्वेस्टिगेशन में, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है, जिससे कि हमने और अभी इंसिडेंट्स देखे कि जुवेनाइल्स का, छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिनवास लोग, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। जो ट्रेस हो गया जी, सानू केड़ी कंट्री है जे किस तरह है? आप जल्दी उनको अरेस्ट करके हम लोग पेश करेंगे। सर देश छड़ चुक्या सर, इतना क्लियर है? मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जिन्हें रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं, डिटेल्स अभी चूंकि सेंसिटिव चल रही हैं, हम उनको पकड़ने के बाद हम डिस्क्लोज करेंगे, और कुछ डिस्क्लोज करना भी ठीक नहीं है। सर जिन्ने ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ? और डिस्क्लोज हम आइडेंटिटी नहीं कर सकते। जिन्ने पकड़े गए हैं कितने सारे रिश्तेदार ने आपस इसमें गिरफ्तारियां 5 गिरफ्तारियां हैं जी। सर जिन्ने काबू किए सारे रिश्तेदार आपस नहीं आपस रिश्तेदार नहीं है जी, आपस रिश्तेदार नहीं है, सब पैसे के लालच में और शातिर थे। इनको लगा कि हम बड़े इजीली पैसा कमा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, पुलिस को गुमराह कर लेंगे, परिवार को गुमराह कर लेंगे, और ये हो भी यही रहा था। संभावना कितने बंदे दी होंदी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, कितने बंदे ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं मैंने दसिया ना 5 लोग की गिरफ्तारी होगी, 6 से 7 लोग और ये शामिल हैं, उन सब को आप गिरफ्तार करेंगे, उनके पीछे देखेंगे ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ हालात विद इन फ्यू आवर्स जी। ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, और ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ आई थिंक घंटा 2 घंटा ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ उनकी हत्या कर दी थी।
ਸਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਰ। और भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है ਇਹ ਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? नहीं, ट्रेन बेसिकली राजस्थान की तरफ जा रही थी, गिद्दड़बाह तो गंगानगर, गिदरबा तो गंगानगर जो है, उस ट्रेन में ये लोग उन्होंने कहा, उन्होंने बेसिकली बताया कि आप इस ट्रेन में अब हुन बैठिए। पहले उन्होंने उनको उधर लेके रेलवे स्टेशन के पास ले गए, फिर कहते तुम थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद कहते हुन ये ट्रेन आ रही है, तुम फला बॉगी में बैठ जाओ। फिर कहते कि आगे देखो ट्रेन स्लो हो रही है, तुम इतने पैसा छड़ के निकल जाओ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਣ? मैंने आपको बताया ना कि हाँ जी, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਵਜੋਤ ਮਲਕਾਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟਪਾਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ? जेड़े नहीं हाँ, जेड़े मोटरसाइकिल से आए थे पैसे न बैग ले जाने के लिए, वही मोटरसाइकिल आया था कि उस मोटरसाइकिल के पीछे हम लोग लगे हुए थे। वो एक आबादी में जाके मोटरसाइकिल छोड़ के भागे थे। हालांकि हमने वहाँ एफर्ट्स करके कॉर्डन कराया राजस्थानी पुलिस के द्वारा, बट वो समहाउ निकल गया। बट आइडेंटिटी मिल गई तो हम लोग उनको भी पीछे लगे। टीमां बनी हुई हैं जांच की ते कितने अधिकारी? काफ़ी सारी टीमें देखिए इसमें लगी थी लगातार। मैं इसको डेली सुबह शाम सुपरवाइज कर रहा था। एसएसपी साहब खुद था पे बरनाला से लेके हरियाणा, राजस्थान, आप खुद रेड कर रहे थे, बिकॉज चीज़ें काफ़ी सारी मिल के आ रही थी कि हाँ पर रेड करें, सेंसिटिव मैटर था। कि मोटरसाइकिल छोड़ जाते, कितने मोटरसाइकिल मिले हैं? मैंने बताया एक मोटरसाइकिल इसमें बरामद हुआ है। सर एक परिवारक मेंबर ये गल तो इसमें देखिए मेन अहम बात यह है कि एक काफ़ी शातिर ये गैंग था ये, और बड़े पेंसटेकिंग एफर्ट्स के बाद बहुत इसमें मेहनत लगी है और इस पेंसटेकिंग एफर्ट्स से इस गैंग को पकड़ पाए हैं, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को, इस पूरी घटना को अनरेबल कर पाए हैं। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੀ ਸੰਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕੋਈ ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫਰੋਤੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? कहते भी जी गुड़ी संगर वाला हाँ जी, एक एक करके अप्रैल में जो गुड़ी संगर का मर्डर हुआ था उसने अपने कजन का किया था, उसके पीछे भी कोई फरोख्ती कारण थी? फिरौती की डिमांड आई थी जी, फिरौती की डिमांड आई थी, अभी वेरीफाई करा रहे हैं। उसमें 2 लाख पहले मांगे थे, उसके बाद फिर इनके कुछ वॉइस नोट्स इन्होंने जड़ा जुवेनाइल बच्चा है उसके थ्रू इन्होंने उसके वॉइस नोट्स में इन्होंने डिमांड की थी। वो गुमराह करते रहे लगातार, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने गुमराह भी किया वॉइस नोट्स में कि ਉਹਦਾ तो संबंध फला कुड़ी ਦੇ ਨਾਲ है, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ पता चल गया है, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ले गए। सो बेसिकली बड़े तरीके नाल गुमराह करते रहे परिवार ਨੂੰ भी ਤੇ पुलिस ਨੂੰ भी। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਏ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਲੱਗ। हाँ, मैंने बताया था ना 6-7 मेंबर्स और हैं जिनके आइडेंटिटी हम लोग को पता चल चुकी है, उनके पीछे लगे हैं। जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हम लोग करेंगे। सर परिवार के मेंबर उसी दिन हो गया ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ रखा किडनैप गुड़ी संगर वाले ने कि उस दिन उसका भी उस दिन ही उन्होंने मर्डर कर दिया था, जो भी तक इंटोग्रेशन में पता चल रहा है। हालांकि अभी बॉडी मिलेगी उसकी, पोस्टमार्टम कराएंगे तो हमें और चीज़ें निकलेंगी उसकी। ਸਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਬੈਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ देखिए, मैं आपको ये इतना बता पाऊँगा, इस पूरे एफर्ट्स में पुलिस, हम लोग कई सारी टीमें वर्दी में, सिविल में, टेक्निकल हमारे जो एफर्ट्स थे उसके सहयोग से हम लोग लगे रहे। अदरवाइज ये 30 लाख भी इनके, ये गैंग जो इतना शातिर था, इसके 30 लाख भी गायब कर जाने थे। सर मेरे को वो पूछना था, राजस्थान में कहाँ की वो जहाँ उन्होंने पैसे रखे थे वो कौन से पैसे? बेसिकली कोट की रेलवे स्टेशन है। सर लास्ट क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਗੁੜੀ ਸੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ दी है? बेसिकली इन्होंने जहाँ बताया है, एक बार हम लोग पहले उसको वहाँ तक पहुँच के उस बॉडी को निकाल लें, क्योंकि अभी बहुत कुछ डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। कुछ इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव स्टेज पे है, शातिर बदमाश लोग हैं जेडे अभी रिमेनिंग एक्यूज्ड हैं, क्या कुछ वो गायब ना कर जाए, एविडेंस डिस्ट्रॉय ना कर जाए, इसलिए आई डोंट वांट टू शेयर। तो मैं भी आप लोग से आग्रह करूँगा थोड़ा दिन हौसला रखें, मैं सारी चीज़ें बंद करेंगे।